Imran, on your left, on a lighter note, if you were allowed to smuggle something, what is that one thing you would smuggle? You're getting me into trouble now, huh? It's okay. Or I've It's smuggled allowed. a lot of things. Like what? Give one, na? I think Neeraj knows the answer to that. No, so even we want to know now. He knows the answer. It's between both of us. I think he would have smuggled the same thing. Okay. I will never let you know what that is. Because I'm actually traveling now. Oh, that's हाँ, अगर right. किसी ने देख लिया ना, सीधा रोक देंगे Have एयरपोर्ट you पे. been stopped at the Green International Channel flight ever? ले रहा हूँ मैं भी. हाँ? Have you been stopped at the Green Channel? Not for a picture, but. I think they've been very sweet with me. Whenever I've traveled back, custom officers have been very sweet. लेकिन वो एक होता है जब आप, you know, it's that typical thing. There's no logic to it. जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, आप शायद गाड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं, लेकिन RTO ऑफिसर जब दिख जाता है तो पता नहीं वो खौफ कभी जाता नहीं है. वो शुरुआत में वैसी चीज़ होती है. And when I started traveling alone, I might have packed only clothes in my bag. लेकिन आपको हमेशा लगता है कि I'm carrying 100 kilos of contraband in my bag. जब आप immigration से जा रहे हैं या आप कस्टम से ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं, तो वो खौफ कुछ सालों तक था, which is dumbfounded. It's not really anything logical. I have got called out at immigration checks very early on. Maybe something about the earrings when I used to travel alone. Abhi they see me with my sweet family, so they kind of don't suspect me. Again, early on in early 2000s, I used to get whisked away on the side quite a bit. Profiling कहते हैं उसे. I fit the bill of something or someone. I don't know who that is. I don't know who that person is, but yeah. I didn't find out, no. हेलो सर, गुड इवनिंग. जैसा कि ट्रेलर था, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, लेकिन अब जैसे 4 घंटे हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें कुछ मतलब बेहतरीन गाने भी हैं जैसा कि हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या है? Did I hear that right? गाने. सर एक्चुअली वो हाँ हंसी बन गए वो जाता नहीं है सर दिमाग में से. एक्चुअली जब पहली बार जब मैं नरेशन जब सुना था तो मैंने नीरज जी से कहा भी था कि इसमें प्लीज़ हर एपिसोड में एक गाना डाल दीजिए. सर ट्यून डाल दोगे तो भी चलेगा सर. डाल उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे गेट आउट बोल दिया ऑफिस से. एंड आई थॉट आई वुड लूज द शो. तो मैंने बोला ठीक है, गानों के बिना काम चला लेंगे. बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा अच्छा है इसमें, उससे काम चल जाएगा. 100% सर आप हैं इसका मतलब सुपर. तो फिर आप बहुत खुश रहेंगे इस शो में. बहुत ही बढ़िया सर बैकग्राउंड स्कोर है. एक सर छोटा सा और सवाल है, क्या इसमें मतलब जैसे थ्रिलर तो है ये, हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा एक्साइटिंग लग रहा है सब कुछ, क्या थोड़ा बहुत मतलब लव स्टोरी देखने को मिलेगी? क्योंकि कास्ट इतनी खूबसूरत, जैसे मतलब कास्ट के साथ जस्टिस में बस 2 खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. कैसा सवाल पूछ रहे हैं? ऑफ कोर्स लव स्टोरी होगी. क्या बात है, क्या बात है सर. ह्यूज अप्लॉज. मैं हूँ और लव स्टोरी नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. भाई साहब अच्छा हुआ आपने हाँ हंसी बन गए बोला, भीगे होठ तेरे नहीं बोला यार सीधे. Hi, right here. This is Kunal here from India Forums. I'll start with Raghav. Firstly, I think Raghav, your working marriage with Neeraj is probably, one of the most lasting ones. You've obviously been on, as an associate director with him on multiple films. Now, you take over or being a director yourself, and of course, Neeraj is there to guide you and do everything. How does this relationship evolve from you being, there with him and knowing him and learning from him, and now taking onus on yourself as well? I think it's been to look back, it's been one of the most beautiful relations that has evolved. And so when I came to Mumbai, I've only worked with Neeraj sir, and I've been with Neeraj sir and Sheetal sir, my producer. So I've just been guided by them throughout. And पिटाई भी बहुत होती है, डांट भी बहुत पड़ती है, सिखाया भी बहुत जाता है. But the best part was that a lot of creative freedom was given. Of course, discipline becomes very, very important, which allows us to, handle challenging situations and get everything done. But creative freedom was something that he allowed the most for me also and for the team also. And that is the reason I think Taskari, when you'll see the show, so there's a lot of places, we just go all out. And the creative freedom is what I would say that's been one of the most beautiful relations with Neeraj sir at all times. Yeah. My question is to Sharad sir. Yes, ma'am. सर हीरो की आवाज बनने के बाद अब विलन बनना कैसा लग रहा है? नहीं, फॉर एन एक्टर ना एक बहुत ज़रूरी होता है कि वो अलग अलग किरदार निभाए. नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे मुझसे. तो इट्स ऑलवेज गुड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स. और
For last 20 years I've been trying that only, and by God's grace थोड़ा लकी हूँ कि मुझे मिलते रहते हैं ऐसे किरदार, और कोशिश करूँगा ऐसे ही, कभी इधर साइड कभी उधर साइड, कभी ग्रीन चैनल कभी रेड चैनल. सो कोशिश यही रहेगी. हाँ, उससे ये होता है कि फॉर एन एक्टर टू ग्रो उसको अलग अलग किरदार करना बहुत ज़रूरी है. अगर वो अपनी छवि या मैं ये हूँ और ऐसा ही करूँगा तो एज एन एक्टर ग्रो नहीं करेगा. वो शायद बड़ा स्टार बन जाए बट वो एज एन एक्टर शायद बड़ा ना बन पाए. तो मैं एक्टर थोड़ा डिसेंट बनना चाहता हूँ. स्टार आप बना दोगे बाकी बात में. Sir, as an antagonist, what will be the message for the audience? इट्स एंटरटेनिंग शो. बहुत दिनों से मोना सारा सोना लेके डॉकयार्ड पे आ जाओ, ये लाइन सुनी नहीं थी किसी ने. तो वैसा ही शो है, एंटरटेनिंग है, कमर्शियल है बिल्कुल. अब ये ना समझें कि बहुत सा डार्क है. इट्स एंटरटेनिंग शो, फुल फन है, कमर्शियल है, फैमिली शो है. फैमिली शो है. तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा. शो है. वैसे एंजॉय कीजिए आप शो को. देखिए हमारी लाइफ में ना, मैं बताऊँ, इतना स्ट्रेस हो, इतना रहता है, ऐसे शो बनने चाहिए जहाँ आप एंजॉय करें. और जैसे इमरान ने कहा कि इस सब्जेक्ट पे कोई फिल्म नहीं बनी है, और शोज में भी एक या किसी फिल्म में छोटा पार्ट होता है, वो एक ये पूरा शो उसके ऊपर बेस्ड है. तो बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे क्या लिंक होते हैं, कैसे स्मगल होता है या कैसे पकड़ते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं. वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो एंजॉय कीजिए शो को.